Hello everyone. How are you? Hello, sir. How was the Diwali? It was so good, sir. How That's are why you, sir? you sent me the LNCs today. I mean, Yes, sir. after so long, I was expecting it by 18th or 17th, so that we can do a discussion on that on this particular date. I mean, on 19th. Uh, Uh, so no, although I received yours and Saurav, which is a good thing. I mean, you guys are interested and you have shared your LNCs. But I would like to make a note that we will be discussing that LMC in the next session because we have to go through it. Means I have to go through it. You have just sent me I guess 5 minutes before only, yes, sir. before the call, right? Yes, sir. So we will do in this way. So earlier, what we thought was that 1 hour we will be discussing about how to pitch your startup, and then we will be discussing the LMC. That's how the session was decided for 2 hours. But now what we will be doing is we will be doing this for 1 hour, how to pitch your startup, right? And then in the next session, which is on I guess 20, which is on so whatever the date is, I mean, so whenever there is our next session, then we will be discussing that LMC sheet also. Got it? Okay. Got it? So before I start with today's session, I would like to know that have you also created or I mean drafted your pitch deck, Navneet and Saurabh? Yes, sir. You I have have your already pitch created. deck. I already You have drafted. shared with me. Saurabh, Yes, do sir. you have you prepared any pitch deck till yet? No, no, no. Okay, so so today's session will be totally on how to create a pitch deck and what are the important elements which should be which are the part of the perfect pitch deck, I can say, right? And Navneet, the most Yes, important point for you is that you have to correct your PPT yes. by after this session. You will get the important points और important layouts कि किस तरीके से एक presentation होना चाहिए, उसका Okay. effective way क्या है. ठीक है, that's why I have added most videos in this presentation. Yes. uh, I don't want to create a theory type of burden for you guys जहाँ मैं आपको points बताऊँ and आप write it down करो. ठीक है. Yes. uh, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालने का कोशिश करा है ताकि एक वीडियो से ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है आपको. ठीक Okay. है. So let's start with the session. Guys, you can see my screen. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You can see my screen, right? Yes, sir. Okay. So, first of all, I would like to ask from you, what do you mean by pitch your startup? मतलब pitch अपने स्टार्टअप को पिच करने का क्या मतलब है और क्यों करते हैं पिच स्टार्टअप को? सबसे पहले आप बताइए कुछ. नवनीत बताइए, सौरभ बताइए, ईशिका है. आप बताएंगे तो थोड़ा इंटरेक्टिव होगा एंड फिर अपन उसको आगे अच्छे से ले जा पाएंगे. So pitch is something like that. सर आप अपने आइडिया को पूरी तरह एक्सप्लोर करके एक्सप्लेन करें. ओके. सौरभ, योर पॉइंट ऑन इट. I think pitch is a brief summary of your startup or your work which you are doing and you complete it in your part. Got it. So basically, what you mean to say, from both of you, I got to know that कि pitch वो है मतलब एक तरीके से अपने स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करना. ठीक है, अपने स्टार्टअप के बारे में बताना किसी को, राइट? Yes. सो Yes. अब इस वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय दिस दैट ये पिच जो होता है वो कई सारी जगह हमें I mean useful होता है, right? So one is let's start with a business plan competition, right? जहाँ आप अपने स्टार्टअप को पिच कर चुके हो, जैसे आयुष ने देखा होगा और आपने में से भी किसी कोई ना कोई पार्ट रहा होगा किसी ना किसी बिजनेस प्लान कंपटीशन के, या देखा Yes. होगा, Yes. राइट? तो वहाँ पे सबसे पहले हम अपने स्टार्टअप को पिच करते हैं. पिच करने का मतलब हम अपने स्टार्टअप के बारे में बताते हैं, वी कैन से. ठीक है ना? अब ये ये जो पिच
ये जो टर्म है पिच योर स्टार्टअप, और ये जो पूरा प्रोसेस है पिचिंग का स्टार्टअप का, ये डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आई मीन कि कहाँ किस पर्टिकुलर जगह पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्टार्टअप इन अ जस्ट अ मीटअप, तो तब भी वो एक तरीके से पिच योर स्टार्टअप ही हुआ, मतलब आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताओगे एक जनरल जो मीटअप में होता है, राइट, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं, तो आप सिर्फ आप बेसिक बताते हो कि लेट्स सपोज आई एम रनिंग ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर with the name of kotasabjiwala.com, where you can come on my platform and book the vegetables and we will deliver at your home। ठीक है, ये हो गया। ये तो बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने अपना आप क्लियर हो गए, आपको पता पड़ गया कि मेरा स्टार्टअप क्या करता है, राइट। Yes. इसी तरीके से आप लोग भी पिच करते हैं अपने स्टार्टअप पे। अब तो अब द थिंग्स आर डिफरेंट, लाइक कि अब ये तो हुआ एक इनफॉर्मल टाइप का पिचिंग जो कि अपन ने किसी कैफे में या कहाँ पे भी मीटअप हो रही थी अपन ने कर लिया, राइट। बट in today's presentation we will be talking about a formal pitch, we can say। I mean जब आप अपना एक पिच डेक बनाते हैं एंड वो सबमिट करते हैं, whether it's an incubator जहाँ आपको let's suppose if anyone of you wants to apply to be part of government programs like iStart, और भी अपने स्टेट में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, राइट, एंड यू गाइस वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, राइट। सो वो आपसे सबसे पहले मांगेंगे पिच डेक दो, ठीक है, या तो उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखोगे तो उसमें जरूर होगा सबमिट योर पिच डेक, एंड देन यू हैव टू ड्राफ्ट अ पिच डेक जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। Yes. जैसे आप में से कुछ एलिमेंट्स आपको पता है, जैसे प्रॉब्लम हुई, सोल्यूशन हुआ, यूएसपी हुई, ठीक है, बिजनेस मॉडल हुआ, ये सारे एक तरीके से अभी आई कैन से ये सारे की फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में डालना पड़ता है। रेवेन्यू स्ट्रीम हुई, मतलब आप अपने, जैसे अभी अपन ने एलएमसी में पढ़ा था कि अपन ने पूरे बिजनेस प्लान को वन एक फॉर्मेट में डालने को सीखा था एलएमसी के थ्रू, ठीक है। अब बात आती है एलएमसी से आगे क्या, एलएमसी से आगे अब अपन को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा जिसे डीपीआर भी बोलते हैं, ठीक है। बट फॉर अस ये जो प्रेजेंटेशन होता है, जो पिच डेक बोल रहा हूँ, यही चीज आपसे यूजुअली मांगेंगे, चाहे आप इन्वेस्टर्स के पास जाओ, चाहे आप इंक्यूबेटर्स के पास जाओ, चाहे आप कहीं और पे भी अपने आप को अगर रिप्रेजेंट करते हो लेटर ऑन स्टेज पे, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपका कॉलेज हुआ या आपका कोई भी, जैसे हम लोग भी अगर आपके पास आएंगे कि भी आपके स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए, तो हम सबसे पहले बोलेंगे सबमिट योर पिच डेक टू अस, गॉट इट, ठीक है। अब आते हैं, अभी तक अपन समझते हैं अपन ने किस किस पॉइंट्स पे काम करा हुआ है, मतलब किस किस पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करा है, क्योंकि आप में से कुछ जने फ्रॉम फर्स्ट सेशन हैं, तो आप में कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले अपन ने ये समझा कि व्हाट इज स्टार्टअप, देन वी वेंट ऑन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू डेवलप अ बिजनेस आइडिया। फिर अपन ने जो बिजनेस आइडिया का था उसका एक पेज फॉर्मेट में डालना सीखा, दैट वाज लीड मॉडल कैनवास, जो कि आपने मुझे अभी सबमिट भी करा है। एंड देन नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू पिच योर स्टार्टअप। आप अपने स्टार्टअप में पहले तो आप पिच डेक, मतलब पिच डेक, ये टोटली जो टॉपिक है हाउ टू पिच योर स्टार्टअप, ये खुद दो सब टॉपिक्स अपने अंडर क्रिएट करता है। आई मीन कि पिच योर स्टार्टअप, तो अपने स्टार्टअप को पिच तो तब करोगे ना जब आपके पास पिच डेक होगी, राइट, एंड देन द वे टू प्रेजेंट इट। बेसिकली इस पूरे टॉपिक में दो चीजें अपन कवर करेंगे, एक तो आप प्रेजेंट कैसे करोगे अपनी स्टार्टअप, और एक आप जब बना रहे हो अपनी स्टार्टअप का पिच डेक, तो क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको ध्यान रखना। गॉट इट सौरभ? Yeah, got it. Okay. ठीक है। तो हाउ द परफेक्ट पिच डेक लुक लाइक, अब अपन एक वीडियो पहले देखेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो वेरी सीरियसली,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे एंड देन वी विल डू अ डिटेल स्टडी. शुड आई स्टार्ट? जी ठीक है. अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे कोई बताएगा एयरबीएनबी क्या है? एयरबीएनबी भी सर वो होटल बुकिंग्स वगैरह की सर ये होटल प्लेटफॉर्म है बुकिंग से सर. होता है क्या? फिर तो ओयो हुआ, मतलब वो तो सर वो होटल्स बुकिंग नहीं, मतलब रूम शेयरिंग समथिंग लाइक. रूम शेयरिंग कैसे, मतलब रूम शेयरिंग भी नहीं है एग्जैक्टली. तो ये No idea. और किसी को कुछ आइडिया एयरबीएनबी क्या है? No. चलो एक लेट्स सी द वीडियो एंड देन अंडरस्टैंड. एंड अभी ये जो आपने बताया ये मुझे आप एंड ऑफ द वीडियो वापस बताएंगे कि एयरबीएनबी क्या है और वो कैसे करते हैं काम. ठीक है, स्टार्ट करें. यस. Airbnb's original pitch deck आवाज आ रहा है क्लियर यस सर. ठीक. from 2009 has become one of the most sought after references for new entrepreneurs. It was one of the first pitch decks from unicorn companies to be released publicly, and it got a lot of media attention. But beyond that, and most importantly, it's a great pitch deck. It's short and to the point, it hits all the high notes, and most importantly, it perfectly paints the picture of the business. We're going to tear this pitch deck down slide by slide. The look of the slides is, or was, very 2000s. So we took the liberty of redesigning it using SlideBean's AI design system. So the first 100 people to sign up with the link below will have access to the redesigned slides for free, as well as a 25% discount on any SlideBean plan. Alright, so let's get on with it. This is Pitch Deck Examples, Airbnb. Let's start with the slide structure. We have a cover, a problem slide, a solution slide, a market validation, a market size, product, business model, market adoption, competition, competitive advantages, team, press, user testimonials, and finally financials. Alright, so the problem slide. This is one of my favorite problem slides ever. 3 clear, direct, and undisputable statements. Writing a problem slide is a common challenge. Founders who are very familiar with the status quo tend to overcrowd this slide. Excess industry details. Remember, the investor seeing your deck might not be familiar with the inner workings of a specific market niche. Travel is by no means a niche, so the purpose here was simply to establish the reality of travel with 3 key points that Airbnb was looking to tackle and solve. This is also the first slide, so you don't want to start your pitch deck with a statement that might make the investors question your actual industry expertise. Remember, think of undebatable statements. Now, the problems stated on this slide need to be tackled on the next slide, the solution. I usually like to show the product on this solution slide, but these guys opted to move the product showcase later on the deck. Instead, they focused on answering the problems with 3 statements. Once again, notice how simple the headline is. A web platform where users can rent their space to host travelers. So simple, no complicated tech jargon. Explaining what your product does in 10 words or less is by no means an easy task. Be prepared to iterate time and time again over this slogan, and you'll know when you find it. When your grandmother asks you what you do, and you can answer in a single sentence, and she can grasp it, you'll be there. That's elevator pitch nirvana. Now, moving on to market validation. Not every pitch deck needs a market validation slide. We made a chart a few months ago showing the required slides on a deck according to a bunch of different people. However, in the case of Airbnb, market validation is essential because they need to demonstrate how people are looking to move away from the hotel model. Craigslist is a classified site, not optimized for travelers or experiences, and with that user experience, it's honestly not optimized for anything. However, it still shows how many people are looking to rent out their spaces. Similarly, over 500,000 couch surfers demonstrate once again the problem statement. People are looking for cheaper travel options and are willing to sleep on a shared space. Airbnb was certainly offering a new concept, but couch surfing provided the validation it needed, which is the reason this slide was critical. Market size. So this is not my favorite slide from their deck. What the founders here were trying to demonstrate is how many trips they could potentially reach if they owned
20% of the budget/online travel market. 20% of the total addressable market is a very bold statement. However, with 2 million plus guests sleeping on an Airbnb location every single night, we can safely say that they beat that metric. When I write pitch decks, I tend to avoid lines like, if we could only get 1% of this market. I would much rather show a more in-depth study of the market opportunity, focusing on the industry data of similar companies. The product. Not a lot to add here. Showcase your product. If you don't have product screenshots to show, you are probably not ready to be pitching investors. Check out our video on seed funding for more details on these traction requirements to raise capital. The business model. Once again, these slides assume a bold and ambitious piece of the travel market. I think that the most significant value on this slide is, once again, simplicity. We take a 10% commission on each transaction. That's simple and straightforward, and it provides a number that can be used to estimate business dimensions. Notice how they are using an average fee per night as well as actual data on their average room price. These are not made up numbers. Airbnb had an operational MVP when this pitch deck was created. Now, the adoption strategy, also called a go-to-market slide, which should lay out a plan to grow the company and the user base. Go-to-market slides are most undoubtedly speculative. As a marketer, I understand how a plan can fail and how quickly the marketing/sales plan of a company can shift to breakthroughs. The idea on this slide is to show that there is a plan, that the team can come up with solid ideas to grow the company, and that they will be able to execute them without having to recruit a larger team or an external agency. The dual posting feature on Craigslist was one of Airbnb's most iconic marketing hacks. They developed a bot or a system that would automatically relist any Airbnb listing on Craigslist, thus exposing the property to a much larger audience, driving traffic to their new and unknown site. The listing would also increase the chance of the host securing a guest because the organic traffic to their site was still very small. Amazing, genius stuff. The competition. I like Business School 101 charts, especially if they can show how your product is differentiated. By setting themselves apart on affordability and online transactions, they would be able to carve out a piece of the market for their own. Competitive advantages. I believe the highlights here are, number one, first to market, number two, host incentive. Airbnb was the first site of its kind, one of those game-changing ideas that were, of course, combined with fantastic execution. The host incentive, as well as real ease of use, were also incredibly valuable. The motivation for extra revenue from unused home space is hard to beat, and non-tech people could easily list their homes and filter guests. Airbnb's system and insurance also protected both the guest and the host from scams, which are common on Craigslist. The team slide. Not a lot to add on the team slide. Make sure you only talk about core team members, people who will be 100% dedicated to the company. Advisors are useless here unless they are incredibly relevant in the space. Also, the team shown on the slides needs to have the capacity to bring the business to its next fundable point. With the $500,000 Airbnb was planning on raising, they probably wouldn't be able to afford any industry leaders or extremely skilled employees. These guys were going to be the upper level management for the next months to come. Go watch our video on finding co-founders. Now, press and user testimonials are helpful. I usually like to merge these two into a single slide, perhaps even combining it with a traction slide, meaning a revenue slide with a nice hockey stick revenue growing chart. Finally, we have a financial slide. Simple and to the point, and most importantly, with a clear goal, reaching 80,000 transactions. The only detail that I would add here is the use of funds, a rough estimate of where the round is going. In this case, considering the product or MVP was already developed, we could assume that the round would go to growth, validating the business. But we'd need to ask Brian to answer that question. All right, I hope you found that useful. Over the next few weeks, we're going to be tearing down pitch decks from other fantastic companies, including Uber and Buffer and Intercom. We're also going to make videos specific to solving some of the hardest slides, such as the market size. Airbnb's original pitch deck from 2009. हेलो हेलो Hey, sir. किसी के बैक में से आई गेस वॉइस आ रहा है कैन यू म्यूट या किससे ओके
नवनीत तुम्हारे वहाँ से शायद वॉइस आ रहा है। एनीवेज, what you got, मतलब what you got to know from watching this video? I hope कि मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत डिटेल्ड आपको पता पड़ा होगा, बट थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, एंड देन वी विल डीपली स्टडी वन बाय वन ईच स्लाइड कि कैसे उन लोगों ने करा है ये चीज़। So Airbnb is something like they are a travel agency that provide you space in the someone's house for a rent for a one night or a two night, something like that. We cannot say they are a travel agency. Basically, Hmm. it's a hospitality chain we can say, जो कि हाउसेस को लेता है, एंड जो कि वीकेंड हाउसेस को बेसिकली, जैसे किसी Yes, के sir. प्रॉपर्टी है It's तो OYO उसको, rooms for rental houses and हाँ वी कैन PGs. से इट्स अ काइंड ऑफ ओयो रूम बट विद Hmm. मच मोर। जैसे अब ओयो रूम्स टोटली होटल चेन्स को कवर करता है, Yeah, but बट Airbnb, it's PGs and all. हाँ पीजीज को नहीं। बेसिकली किसी का अगर होम वीकेंड है, राइट, Home weekend. और उसको he wants or he or she wants to earn a penny of it, right, then he give them on rent, मतलब वो लिस्ट कर देते हैं एंड देन यू कैन बुक अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो बेसिकली अभी इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि एयरबीएनबी क्या करता है, ठीक है। अभी अपन को इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उस वीडियो में से क्या क्या टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें जो कि आप अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। क्या क्या, मतलब पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी स्लाइड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। आपकी पूरी एंटायर स्लाइड में क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है। Problem, opportunity, solution. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई वांट टू शेयर समथिंग एल्स। Can you see the screen right now? Presentation is No, not. No? Okay. no screen is So being shared right. just a second. You can see, right? Now you can see it. Yeah. Yes, sir. Yeah. तो अब अपन डिटेल में आते हैं एंड समझते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स थे और क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अपन ने वीडियो देखा, आई आई नो दैट कि आपको सारी चीजें नहीं समझ आई होंगी इस वीडियो में से, मतलब एक वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से होना चाहिए, राइट। अब आते हैं सबसे पहले वाली बात, ठीक है। तो जो जो आप पिच डेक बनाओगे, राइट, अब उसका एक कवर होता है, मतलब एक फ्रंट जो पेज बोलते हैं उसको बोलते हैं कवर, गॉट इट? हेलो, Yes, yes. या सो जैसे सौरभ है या नवनीत है, जो भी आप पिच डेक बनाओगे उसका जो फर्स्ट स्लाइड होगी उसको कहते हैं कवर, और वो कवर कुछ ऐसा हो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। यूजुअली हम लोग करते नहीं है ये प्रेजेंटेशन बताने का, इसलिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो, क्योंकि अभी सौरभ ने तो प्रेजेंटेशन बनाई नहीं है, और भी आप लोगों में से काफ़ी लोग प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, नवनीत आप भी उसको एक तरीके से एनहांस करेंगे, राइट। तो जो फर्स्ट स्लाइड होगी आपकी वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ये दिख रही है आपको, एयरबीएनबी लिखा हुआ है, पिच डेक, एंड देन नीचे लिखा हुआ है बुक रूम्स विद लोकल रेदर देन होटल्स, दिख Yes. रहा है, Yes. राइट। Yes, sir. तो Yes. ये इनकी फर्स्ट स्लाइड है। इसी तरीके से जब आपकी कोई आपका जो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस की फर्स्ट स्लाइड होगी उसमें इट्स गुड कि अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड एक पिक्चर डाल दें एंड देन लोगो, एंड देन राइट हैंड साइड पे एक वन लाइन स्टेटमेंट कि आपकी स्टार्टअप करती क्या है, गॉट इट? Yes. ठीक है। अब आते हैं अपन कि क्या क्या आपके एयरबीएनबी, जैसे एयरबीएनबी के एग्जांपल को लेके चलो, और आप ये आपके आपके जो प्रेजेंटेशन है वो भी इन्हीं एलिमेंट्स को कवर करेगा मोस्टली, राइट। तो अपन एयरबीएनबी को एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि अपन को पूरा ही वही डालना है, अपन को अपने एग्जांपल से डाल सकते, अपने एग्जांपल और अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकते हैं, गॉट इट? तो आप जैसे बता रहे थे, these are the 14 elements which are usually covered in pitch decks,
सबसे पहले कवर जो मैंने आपको अभी दिखाया, देन इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि आप में से पिछले वाले अपना डिस्कस हुआ था और एलएमसी में भी था। देन इट्स अ सोल्यूशन स्लाइड कि आपका क्या सोल्यूशन है या आपकी स्टार्टअप क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। फोर्थ इज मार्केट वैलिडेशन कि मार्केट मतलब कितना आपका प्रोडक्ट या सर्विस वैलिडेट आप कर चुके हो। फिफ्थ इज मार्केट साइज, देन इट्स प्रोडक्ट, फिर उसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से आप रेवेन्यू अर्न करेंगे। देन इट्स एडॉप्शन स्ट्रैटेजी, ये ज़रूरी नहीं है हर स्लाइड में हो, ये डिपेंड करता है कि आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते, राइट। नाइन्थ इज कंपटीशन एंड टेंथ इज कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये यूजुअली डलता ही है हर स्लाइड में क्योंकि हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमारे साथ कौन कौन से और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेम रेंज या सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं। 11th इज थीम ऑफ कोर्स। 12th इज प्रेस, अगर आपके बारे में कुछ छपा है या कहीं आर्टिकल आया है देन यू हैव टू पोस्ट इट और एल्स यू कैन स्किप दैट। 13th इज यूजर्स टेस्टिमोनियल्स, ये होना ज़्यादा अच्छा है। जैसे नवनीत, अगर आपका प्रोडक्ट कुछ सेल हुआ है या Yes, sir. किसी ने कुछ बताया है आपके प्रोडक्ट के Hmm. बारे में तो वो आप यहाँ पे डालें। ऐसे ही Okay. सौरभ, जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए एंड इन द सेम वे जो भी और भी लोग अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट करेंगे या पेज डेक को प्रेजेंट करेंगे वो अपना यूजर टेस्टिमोनियल्स डालें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल्स। गॉट इट? या ये समझ आएगा कि आपको क्या क्या कवर करना है। Yes, sir. right? अब अपन थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसको। तो ये थी पहली कवर स्लाइड जो मैंने आपको बताया, राइट। अब इसमें अपन ने ये बेसिकली ये ये देखने से इसमें कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का है नहीं, आपको क्लियरली दिख रहा है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो उसका एक मेन पिक्चर हो, साइड में लोगो हो एंड देन यू कैन डायरेक्टली राइट कि पेज डेक एंड एक लाइन का स्टेटमेंट होना चाहिए सिंगल। जैसे नवनीत, आपके लिए क्या है एक लाइन का स्टेटमेंट, कुछ सोचा है? Yes, sir. Can you repeat, sir? मैं बोल रहा हूँ वन लाइन का कोई स्टेटमेंट होना चाहिए जो Okay. कि आपके स्टार्टअप को डिनोट करे, मतलब आपके स्टार्टअप के बारे में बताए। तो कुछ सोचा है वन लाइन स्टेटमेंट क्या हो सकता है आपके पास? One-line statement. So I don't have any one-line statement, sir. जैसे है ना, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, बुक रूम विद लोकल्स रेदर देन होटल्स, ये दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से आपके स्टार्टअप का एक वन लाइनर होना चाहिए, जिसे बोलते हैं वन Okay. लाइनर, है ना, जो कि पढ़ के मतलब कवर देख के भी कुछ लोगों को समझ आ जाए कि एक चीज ये स्टार्टअप करता क्या Mm-hmm. चलिए है। जैसे आपके केस में मैं अभी रफ ऐसे ही बोल रहा हूँ। Education with augmented reality. हाँ, मतलब इसमें बोल सकते हैं कि लर्न विद ऑगमेंटेड रियलिटी। Something like तो that. समझ आ जाए, कवर देख के समझ आ जाए कि भैया स्टार्टअप है, एआर बेस्ड स्टार्टअप है। अब मुझे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप लेटर ऑन स्टेज पे जाओगे, है ना, तो आप अपनी पीपीटीज भेजोगे, भेजोगे मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आप मल्टीपल जगह ट्राई करोगे, ठीक है। गॉट इट? अब आप Yes, जब sir. ट्राई करोगे तो बहुत सारी वीसी फर्म्स पे भी अप्रोच करोगे और उनका अप्रोच करने का तरीका ये है कि आप, वो लोग एक ईमेल देते हैं और बोलेंगे कि अपना पिच डेक भेज दो। सबसे पहले ये होगा, ठीक है। अब Yes. उनके पास तो 100+ पिच डेक आती है रोज, तो वो सारी तो खोलते नहीं होंगे। आई मीन जो सीरियस होते हैं वो खोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं, बट एक एक होता है ना, एक अट्रैक्शन होना चाहिए आपकी वीडियो में। जैसे आप, अब जैसे मैं एक और आपको रियलिटी वाली चीज दूँ, यही है एयरबीएनबी की जो आपको दिख रहा है कवर पेज, इसी की जगह अगर मैं यहाँ सिर्फ कुछ नहीं लिखता, कोई पिक्चर नहीं होती, एक वाइट सी स्लाइड होती जैसे अपन लोग यूजुअली कॉलेज में बनाते हैं और उस पर लिख देता एयरबीएनबी का, ना लोगो होता ना वो होता। अब आप बताओ वो एक अट्रैक्ट करता है या नहीं करता? It is not attractive. ठीक है। तो आपको ये ट्राई करना है कि आपका जो कवर पेज हो वो थोड़ा एक अट्रैक्ट करे, एक फील हो उसमें, एक दिखे लोगों को कि हाँ भाई, मतलब एक क्यूरियस होना चाहिए हर कोई आपके बारे में जानने के लिए, आपकी स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए, ठीक है। एंड एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन या कुछ कोई बात करना चाहे, कुछ बताना चाहे, देन वी विल मूव अहेड ऑन सेकंड एलिमेंट।
एंड बाकी जो अमित एंड जो और भी अदर जो कि इस कॉल पे हैं, दीपांशु, विकास, इशिका, ईशान, एनीवन वांट टू से एनीथिंग? क्या हम कंटिन्यू करें? सर कंटिन्यू करें? सर मैंने स्लाइड 3 की सर इसकी और भी सर वीडियोस मैंने देखी हैं, तो ये अभी आपने इसकी दिखाई इनकी एयरबीएनबी की? एयरबीएनबी नहीं, स्लाइड बीन जो अभी आपने खोला था ना यूट्यूब चैनल, हाँ 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 इनकी मैंने और भी वीडियोस देखी हैं। हाँ सर हाँ। इन्होंने कहा था कि आप फ्रंट पेज या इंटरनल पेजेस में ज़्यादा पिक्टोरियल व्यूज या ज़्यादा ऐसी चीज़ें मत डालें जो मैसी कर दे। तो कहाँ मैसी करा हुआ है? ये कहाँ मैसी? ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे हम्म भी? हम्म हम्म। ये सर तो कहाँ इतना भी मैसी है? सही है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इट्स इट्स अ हम्म। परफेक्ट पिच डेक जो कि हम लोग भी रेफर कराते हैं किसी भी स्टार्टअप को, और ये बहुत ओके। सॉर्टेड है। इसमें हम्म मतलब ये पिच डेक से एयरबीएनबी हम्म हैज रेज्ड द इन्वेस्टमेंट, तो इस पे हम्म तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते अपन कि इट्स नॉट अ करेक्ट। ठीक है। और सॉर्टेड की बात जो आप कर रहे हो, वो तो आप फील देखो ना, आप फर्स्ट कवर देखोगे आपको खुद ही एक इंटरेस्ट आएगा कि यार लेट्स रीड अबाउट इट। ठीक है। जब यस सर। हमने ये प्रेजेंटेशन देखा था तो हमारे पास मल्टीपल प्रेजेंटेशन थे, तो हमने भी तो ऐसे ही चूज करा कि एक कवर देखा इसका, भैया ये हमें क्यूरियोसिटी हुई इसके बारे में पढ़ने की। गॉट इट? यस सर। ठीक है। थैंक ये तो हो गया आपका कवर। ठीक है। अब सबसे सेकंड वाली जो आती है आपकी, जो इम्पोर्टेंट स्लाइड होती है, वो होती है प्रॉब्लम स्लाइड, जो कि चाहे आप इन्वेस्टर को अपनी पेज डेक भेजें, चाहे आप कहीं पे भी अपनी पेज डेक भेजो, मतलब चाहे आप कंपटीशन में भेजो, चाहे पेज डेक में मतलब चाहे इन्वेस्टर को भेजो, तो ये स्लाइड तो आएगी ही आएगी। ठीक है। अब इसमें ये समझो कि इन लोगों ने कितना इजीली एक्सप्लेन कर रखा है। प्रॉब्लम क्या डाल रखी है? प्राइस इज अ इम्पोर्टेंट कंसर्न फॉर कस्टमर बुकिंग ट्रैवल ट्रैवल ऑनलाइन, कि भैया प्राइस बहुत मैटर करता है कस्टमर्स के लिए जब वो उनको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। सेकंड, होटल्स लीव यू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिटी एंड इट्स कल्चर, मतलब होटल्स यूजुअली फार अवे होते हैं या आप कनेक्ट नहीं हो पाते सिटी से और उसके कल्चर से। जैसे आप में से बूंदी कौन कौन गया है? हेलो, कहाँ सर? कौन कौन बूंदी गया है आपके में से? बूंदी, कोटा के पास में बूंदी है ना, कौन कौन गया है? ना। आपकी आवाज नहीं आ रही सौरभ आपकी, आप म्यूट में हैं शायद। Yes, we visited हाँ, on the before. ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक आपने देखा होगा, एक हर प्लेस का एक अलग फील होता है, एक अलग इवन जब वो हाउसेस जो बिल्ट होते हैं उनका भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप बूंदी में जाएंगे तो जो हाउसेस हैं जो या हिली एरियाज पे बने हुए हैं नियर टू दैट लेक, तो उनका लुक एंड फील अलग है। वो एक कॉमन घर की तरह आपको नहीं मिलेंगे, मतलब एक जो अपने हाउसेस होते हैं और वो हाउस को देखोगे तो एक डिफरेंट मिलेगा। कई सारे जैसे किले होते हैं अपने, बहुत सारे लोग उस अपने हाउसेस को उस तरीके से मेंटेन करते हैं, राइट? Yes, तो अब एयरबीएनबी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कंसर्न कर रहा था, वो तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कर रहा था। एक तो प्राइस। ठीक है। हम प्राइस मतलब वो बताना चाह रहा था कि इस इंडस्ट्री में प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप होटल चेन में जाओगे तो प्राइस, सबसे पहले लोग प्राइस देखते हैं कि कौन सा होटल कितने में मिल रहा है, राइट? सेकंड है, हो, होटल्स यूजुअली क्या होता है, सिटी से बाहर होते हैं, प्लस एक कल्चर नहीं मिलता वहाँ पे। मतलब एक, अगर मुझे बूंदी का कल्चर देखना है तो वहाँ एक नॉर्मल होटल में रह के मुझे नहीं पता पड़ेगा, राइट? वेयरएज अगर वहाँ एयरबीएनबी होगा या ऐसी कोई फैसिलिटी होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करेगा मेरे को वहाँ के कल्चर से, क्योंकि उनका लुक एंड फील ऐसा होता है। क्योंकि यूजुअली एयरबीएनबी में जब आप रहते हैं तो आप के साथ जो रहने वाला है वो ओनर है ऑफ द हाउस, यू नो दैट। वो चीज़ समझ आ रही है आपको? यस सर। तो एयरबीएनबी में जब आप स्टे कर रहे हैं तो आपके साथ हाउस का ओनर भी रह रहा है। ठीक है। तो वो जो फील होगा वो होटल से कंपेयर करके अलग होगा। Got it? ठीक है। और थर्ड था, नो इजी वे एग्जिस्ट टू बुक अ रूम विद अ लोकल और बिकम अ होस्ट। ठीक है। मतलब आप अपना रूम एक तो डाल नहीं सकते किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जैसे मान लो आज आपके पास वेकेंट रूम है, तो क्या आप ओयो में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। ना बट सर। अगर आपके पास एक अच्छी स्पेस है और एक वेकेंट रूम है, और अगर आप चाहो एयरबीएनबी भी डालना, तो अगर उनकी फैसिलिटी अवेलेबल है उस सिटी में तो वो लोग डाल देते हैं।
इवन आप एक दो दो रूम भी डाल सकते हैं एयरबीएनबी, ठीक है। सो अभी इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि इसी तरीके से जैसे इन लोगों ने एक प्रॉब्लम मेंशन करी है, देखो ये एग्जैक्ट स्लाइड है, दिख रही है? हेलो, Yes. यस यस। ठीक है। अब यूजुअली आप लोग क्या करते हो, जब आपको बोला जाता है ना प्रॉब्लम वाली स्लाइड लिखो, तो आप उस पर पूरी कथा लिख देते हो। यूजुअली जो बच्चे करते हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको, कि हम ये भी सॉल्व करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये पढ़ेंगे। अब आप उसके कॉन्टेक्स्ट में सोचो जो कि आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा है, एंड ये सोच के प्रेजेंटेशन बनाओ कि उसके पास एक प्रेजेंटेशन नहीं है, उसके पास लेट सपोज 100+ प्रेजेंटेशन रोज आती है जो कि देखता है। तो वो क्या आपकी वो जो पूरा थ्योरेटिकल आपने लिख रखा है कि मेरी स्टार्टअप ये करेगी, मेरी स्टार्टअप ये इस तरीके से सॉल्व होगा, क्या वो पढ़ेगा? अज्यूम योरसेल्फ इन दैट कंडीशन, नो आप पढ़ोगे? नो। नहीं पढ़ोगे, ठीक है। नवनीत आपकी भी मैंने शायद स्लाइड देखी है, जो मुझे रिकॉल हो रहा है, आपका भी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक था से वो दो सर। हाँ, एक से दो सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर पॉइंट्स में थे, बट वो जो बिजनेस मॉडल समथिंग था ना, वो वहाँ नहीं थोड़ा नहीं, मैसी हो गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी जो हम्म, पॉइंट्स में भी है, देखो पॉइंट्स का मतलब ये हम्म, नहीं कि आप पॉइंट बना के आपने फिर 3 लाइन की स्टेटमेंट लिख दी, बात अच्छा। तो वही हो गई ना, वो भरा भरा हो गया। नहीं सर, सिंगल मतलब सिंगल पॉइंट्स डाले हैं सर मैंने। मैं आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, मैं अच्छा मैं अच्छा सब हाँ। मैं सबको, अगर अगर आप पॉइंट भी डाल रहे हैं हम्म, तो हम्म, इट शुड बी वेरी रिलेवेंट पॉइंट। जैसे अभी अगर एयरबीएनबी बताता तो ये प्रॉब्लम पे ये पूरी स्लाइड भर सकता था, एक स्लाइड या हम्म, चार चार स्लाइड भर सकता था, हम्म, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने डाला कितना है, सिर्फ एक बैकग्राउंड डाला है जो कि बहुत लुक एंड फील उसका फिर आपको एक इंटरेस्ट दिखाता है, होटल, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हो जो आपकी बैकग्राउंड हो स्लाइड का, जरूरी नहीं वो आप पावर पॉइंट का कोई जो नॉर्मल सा बैकग्राउंड होता है आपने वो ले लिया, ठीक है। अपना जो आप प्रोडक्ट का लेआउट बनाओगे, मतलब एक क्रिएटिव बना सकते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर प्रोडक्ट है तो उसको प्रोडक्ट दिखा सकते हो, सर्विस है तो सर्विस से रिलेटेड क्रिएटिव बना सकते हो। एंड देन उसके जो स्नैपशॉट्स होते हैं, राइट, उसको आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। या उस उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जैसे आपका सौरभ, आपका एग्रीकल्चर है, राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना? I yes. नवनीत आपका एजुकेशन है, तो यस सर। आपका बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अब आपका बैकग्राउंड होटल रिलेटेड नहीं चलेगा, इनका इनका होटल रिलेटेड काम है तो इनका वैसा चल रहा है, गॉट इट? यस तो प्रॉब्लम स्लाइड में किसी को कंफ्यूजन? No. सर। सर ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपकी पिच डेक मुझे मिलनी चाहिए या कहीं और सबमिटेड होनी चाहिए, हम्म, तो वो इस तरीके से होनी चाहिए, तभी आपको कुछ फायदा है पिच डेक का। नहीं तो मतलब आप अपना टाइम भी स्पेंड करोगे फिर बनाओगे, फिर मतलब नहीं है। सर सर वन करेक्शंस डाउट होते, है। हाँ हाँ पूछो आराम से। सर जो लैंग्वेज अपन डालते हैं हम्म, पॉइंट्स के अंदर, सर उनको हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रखें हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल, सब ये समझ नहीं आता सर। इंटरमीडिएट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसा बहुत ऐसा प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए कि अपन ने बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज, ऐसे कि सर वर्ड्स यूज कर दिए जो कि हम्म, बहुत ही हवा से निकल रहा है, ताकि अगर जो बेसिक लेमेन वाला बंदा है उसको तो समझ ही नहीं आया। सर वो जो सर मैंने पिच बनाई थी उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के वर्ड्स डाल दिए मैंने। मत डालो ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पढ़ रहे होते हैं आपकी पेज टैग, ऐसा भी होता है। हम्म, हम्म, या कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो भी आप इन्वेस्टमेंट फर्म को अपनी पेज टैग देते हो, तो वो डायरेक्ट थोड़ी जो टॉप ऑफ द, मतलब जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसके पास डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, पहले तो किसे जाएगी, एग्जीक्यूटिव लेवल के पास, फिर वो पास करता है, फिर थोड़ा सीनियर पे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो जो लेमन वाला बंदा है, मतलब एग्जीक्यूटिव को आता है, मैं ये नहीं बोला नहीं आता, बट अगर उसने उसको बहुत सारे तुमने हाई फाई वर्ड्स दे दिए तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा, वो तो हटा ही देगा, रिजेक्ट ही करेगा, वही वही। ठीक है। ओके आप ये देखो ना, इस टेम्पलेट को आप इसको एक तरीके से टेम्पलेट मान के चलो आपके लिए। अब आप ये तीनों पॉइंट पढ़ रहे हो तो सबको समझ आ रहा है ना कि क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स इट। इसी तरीके से आपको करना है। अब आते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन स्लाइड, ठीक है। सोल्यूशन स्लाइड अब ओवरऑल प्रेजेंटेशन में ये ध्यान रखना, जितने ज्यादा ग्राफिक्स डाल रखो, जितने ज्यादा इमेजेस डाल रखो,
इमेजेस से एक्सप्लेन कर सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सोल्यूशन स्टेटमेंट पे इनका सोल्यूशन पढ़ते हैं पहले नाम। अ वेब प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स कैन रेंट आउट देयर स्पेस टू होस्ट ट्रेवलर्स टू। कितना सिंपल, वन लाइन में सब कुछ समझा दिया भैया। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ यूजर्स जो हैं होंगे, मतलब अगर कोई वो प्रॉपर्टी डालनी है तो वो डाल सकता है, और जिस जो कि ट्रैवलर्स हैं, है ना, वो वहाँ से ले सकते हैं। मतलब टू होस्ट द ट्रैवलर्स टू, मतलब हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू रेंट प्रॉपर्टीज को डालेंगे विच आर अवेलेबल ऑन रेंट टू होस्ट द ट्रैवलर्स। गॉट इट? एंड Yes, देन sir. Okay. नीचे आओ, इन लोगों ने कितना अच्छे से समझा रखा है। से 3 सॉल्यूशन को वो बना, मतलब सॉल्यूशन सिर्फ एक एंड से नहीं होंगे ना। जैसे मान लो अब ये एयरबीएनबी का जो प्रेजेंटेशन है, इसका जो सॉल्यूशन वाला चीज़ है, ये ट्रैवलर के लिए अलग सॉल्यूशन दे रहा है और जिसका घर है उसके लिए अलग सॉल्यूशन हुआ। मतलब एक तरीके से तीनों को उसने डील करा है। ठीक है, जब अपन बात करते हैं ट्रैवलर की, तो उसका हो गया सेव मनी व्हेन ट्रैवलिंग, मतलब एक अच्छे प्लेस पे रहने का मौका मिलेगा सही रेट्स में। ठीक है, बीच वाले की बात करें तो ये उसकी बात कर रहा है जिसका घर है। मेक मनी व्हेन होस्टिंग, मतलब आप आराम से अपना किसी को भी एक होस्ट का एक्सपीरियंस देके, आई मीन टू से किसी अपने एक गेस्ट एक्सपीरियंस जो होता है, जो गेस्ट की तरह ट्रीट करके आप अपना पैसा कमा सकते हैं। एंड शेयर कल्चर, ठीक है, लोकल कनेक्शंस टू द सिटी, मतलब यूजुअली मैंने जैसे कहा कि ये एक तरीके से एक घर है जो कि आपके लोकली सोसाइटी में कहीं भी बेस्ड है। ठीक है, वो आपका घर भी हो सकता है, मेरा घर भी हो सकता है, जो कि सोसाइटी में बेस्ड है। गॉट इट? तो एक शेयर कल्चर उसको मिलेगा, जहाँ अगर यही अगर वो रेडिसन ब्लू में चले जाएगा या बड़े होटल में चला जाएगा, तो क्या आपको लगता है वो आसपास वाले घरों से बात कर सकता है या कुछ ऐसा शेयर कल्चर उसको मिलेगा? इवन दूसरे रूम वाले से भी बात नहीं कर सकता। Yeah. Yes, sir. गॉट इट? आप में से कोई गया है कभी, मतलब जैसे आजकल हॉस्टल्स टाइप की चेन बन रही है, जैसे Hostel, yes. शेयर्ड डॉर्मेट्री में रहते हैं, Yes, yes, सुना है yes, आपने? yes, 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 yes. तो वहाँ आप देखते होंगे कैसे लोग मतलब इवन आपको जानते भी नहीं है तो भी बहुत जल्दी आपसे फ्रेंडशिप हो जाती है, एंड देन यू आर फ्रेंड्स विद देम। Well, rooms and all these things are also create so much creative and different. राइट, तो इसी तरीके से एयरबीएनबी का एक कॉन्सेप्ट है, बट ये क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंट है हॉस्टल चेन से, क्योंकि ये डॉर्मेट्री टाइप ऑफ चीजें नहीं देता, एक अच्छा सा आई कैन से एक अच्छा सा लिविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता Okay. है। ठीक है, अभी अच्छा, अब ये वाली पेज पे आओ। अब ऐसे ही जब आप अपने, जो आपकी स्लाइड होगी जो कि थर्ड स्लाइड होगी यूजुअली, सोल्यूशन स्लाइड, तो इसी तरीके से आपको अपना सोल्यूशन स्टेटमेंट डालना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यही फोर्स नहीं कर रहा कि मतलब यही पूरा ले लो या यही 3 पिक्चर्स ले लेना, मतलब इतना इजी Give टू अंडरस्टैंड होना चाहिए haiku जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है। short sentence. मतलब ऐसा नहीं सोल्यूशन स्लाइड पे देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इस प्रेजेंटेशन का, ताकि आप प्रेजेंटेशन बनाने से पहले ही समझ जाओ कि ऐसा नहीं कि अगर अपन को सोल्यूशन स्लाइड बनाने को बोल दी तो अपन ने पूरा सोल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया और उसको पूरा पैराग्राफ में बना दिया, 3-4 पॉइंटर्स डाल दिए और अपन को लगा कि पॉइंटर्स बोले थे तो पॉइंटर्स तो हो गए, हमारा काम खत्म। ठीक है, हम ऐसे तो हम भी अप्रूव कर सकते हैं, बट जब आप लेटर ऑन स्टेज पे जाओगे तो इसी तरीके की पिच डेक आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगी, तो क्यों नहीं अभी से ही क्रिएट कर ले। गॉट इट? This is making a website using UX and UI. क्या? It is like making website with UX and UI design. हाँ, बेसिकली इट शुड गिव अ पर्सन, इट शुड गिव पर्सन अ फील जो कि आपकी आगे प्रेजेंटेशन को पढ़े, नहीं तो वो वहीं रोक देगा। It should attract and uh, like the whole. पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ अट्रैक्शन है, क्लैरिटी होनी चाहिए क्या कर रहे हो, विद विद अ गुड आई कैन से अ लुक एंड फील कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन चौथी स्लाइड पे। ये समझ आ गया? Yes, sir.
मार्केट वैलिडेशन, ठीक है। मार्केट वैलिडेशन में आपको ये दिखाना होता है कि जो अदर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उसके यूजर्स कितने हैं, ओके। है ना। जैसे एयरबीएनबी ने जब मार्केट वैलिडेशन करा, उसने एक वेबसाइट का एग्जांपल दिया, क्रैगलिस्ट क्रैगलिस्ट.com और काउचसर्फिंग.com, ठीक है। ये दोनों क्या करते थे, एक तो करता था टेम्पोररी हाउसिंग की लिस्टिंग करता था, ठीक है। और मतलब ये दो वेबसाइट्स इस तरीके से काम कर रही थी। जैसे आप पढ़ेंगे तो क्रैगलिस्ट हैड बीन सॉल्विंग द इशू ऑफ टेम्पोररी होस्टिंग फॉर अ वाइल, ठीक है। मतलब ये उसी तरीके से था, होस्ट जो एयरबीएनबी अभी करता है, उसी तरीके से ये होस्टिंग, होस्ट मतलब यहाँ पे होस्टिंग का मतलब वो वाला वर्ड नहीं है, ये टेक्निकल वर्ड नहीं है कि आप वेबसाइट होस्टिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ होस्टिंग वाली मतलब जो अपन गेस्ट के लिए होस्ट करते हैं, वो चीज़ की बात हो रही है। Got it? तो ये दो वेबसाइट से उठा के इन लोगों ने मार्केट वैलिडेशन डाला। इसी तरीके से जब आप अपने स्टार्टअप के बारे में डाल रहे हो, तो आप कोई दो वेबसाइट्स का एग्जांपल लेके ये मेंशन कर सकते हो कि इसमें इतने टोटल यूजर्स हैं, या इतने टोटल हाउसिंग लिस्टिंग है, या अगर अगर बहुत ही इन केस आपके में है ही नहीं अवेलेबल, तो आप ये वाली वेबसाइट, ये अपनी स्लाइड स्किप भी कर सकते सर आई हैव डाउट। हो। हाँ हाँ हाँ। अगर जैसे हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं कोई स्टार्टअप, और हम्म, इफ आवर कंपटीटर्स आर ऑन अदर एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कर तो सकते हो। हम हमको उनको प्रेफरेंस लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ले हमको सिर्फ इंडिया में उतारना है सब कुछ, कोई या दिक्कत फिर नहीं, डाल सकते हो ना। अब जैसे एग्जांपल हो ना, ओला थी, उबर थी, उसके बाद ओला आई, तो मार्केट वैलिडेशन में तो उन्होंने डाला ना कि मतलब इस टाइप ऑफ सर, ये जो वन टैप टैक्सी बुकिंग सर्विस है, इसके लिए लोग प्रेफर करते हैं, या लोग ऐसी सर्विस चाहते हैं। मार्केट वैलिडेशन से कहीं एरिया से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कोटा में चलेगा कि नहीं चलेगा, दिल्ली में चलेगा कि नहीं चलेगा। मार्केट वैलिडेशन मतलब जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो आपने सर्विस दी, वो लोग खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, कहीं पे भी खरीद रहे, जस्ट टू इंश्योर कि हमारा काम पॉसिबल है। चल रहा है, मतलब चलेगा, है ना। और मार्केट वैलिडेशन का इसी तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो। अब सॉरी, पिच डेक में आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हो कि आपने वैलिडेट कितना करा, ठीक है। और एक और चीज आप ये कर सकते हो कि जरूरी नहीं जैसे इन लोगों ने वेबसाइट का डाला हुआ है उसी तरीके से आप डाल रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो वाया सर्वे। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, उसका आपने ऑनलाइन सर्वे क्रिएट कर दिया गूगल फॉर्म पे, उसका डेटा आया, वो वैलिडेशन हो गया आपके लिए, और आपने वो उसका स्नैपशॉट डाल दिया कि इतने लोगों ने यस बोला था। जैसे नवनीत, आपके केस में अगर आपका ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोडक्ट है, हम्म। ठीक है, जी सर। अब उसको आप वैलिडेट करा सकते हो। 10 लोगों को प्रोडक्ट दिखाया, वैलिडेट कराया कि कैसा एक्सपीरियंस है, आप लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे, और उसका जो सर्वे आया वो आपने वैलिडेट करके डाल दिया इसमें। अच्छा सर, तो ये मतलब भी सर अमाउंट सर छोटी हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट दिखा हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी छोटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है ना सर कि जरूरी थोड़ी कि आपकी जो कर रहे हो वो एग्जिस्ट कर रहा हो या उसकी एक वेबसाइट प्रॉपर हो। अपन को तो ये दिखाना है कि हमारी तो अपन अपन जो जिस स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं वो फिजिकल। वैलिडेटेड है। अपन बोलते हैं ना कि किसी भी स्टार्टअप को डायरेक्टली लॉन्च नहीं करते, पहले वैलिडेट करते हैं, अपना आइडिया वैलिडेशन होता है कि वो सही भी है या नहीं है, यस। यस यस। तो उसी तो लाइक वैलिडेशन के हमारी तो बाद। टेक्नोलॉजी बिल्कुल ऐसे इंडिया में न्यूली है, बिल्कुल है ही नहीं पहले से। हाँ, तो प्रोडक्ट तो वैलिडेट करा ही सकते हो ना, वंस द बिल्कुल प्रोडक्ट सर। इज फाउंड। जैसे गूगल का सर एक्सपेंडिशन है एक हाँ, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या कहते हैं, बट सर वो क्या करता है सर, सर्च बेस्ड ऑब्जेक्ट्स लाता है और आपको ऑगमेंट करा के दिखा देते नवी तुम्हारे सेक्टर में भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं इंडिया में ही जो इसमें काम कर रही हैं। हैं, सर पहली बात सर तो। है सर, बट यूजर्स नहीं है उनके पास अभी। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी एक एविडिया लैब्स, सर आपने देखा मैंने, उसके बारे में। हाँ, डिटेल्ड निकाली सर आपके आपके बताने से। हाँ, वो आपकी सेक्टर में तो काम कर रही है, ऑगमेंटेड हाँ में तो कर बिल्कुल। रही है, और वो सर तो क्या अमेजन उनका, और फ्लिपकार्ट में बेच हाँ, रही है प्रोडक्ट्स ऑगमेंटेड के। हम्म। तो सर
हाँ बोलो। सर जैसे आपने वो एक बताया था एविडिया लैब्स, हाँ सर मैंने उसके गूगल प्ले स्टोर पे वो चेक किए तो उनके कोई ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं है। ठीक है। नहीं, बिल्कुल। हाँ ठीक है, नहीं ठीक होंगे। है, जैसे हाँ फिर मैंने आपको एक बताया था कि येप एआर करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, हाँ वो भी एआर बेस्ड काम करी, उनके लगभग 10,000 समथिंग है डाउनलोड्स। ठीक है, ठीक उसके है। अलावा सर गूगल एक्सपेंडिशंस है, उसके काफ़ी अच्छे हैं। नहीं, आप पहले तो आप क्लियर हो कि आपका फोकस ऐप डाउनलोड्स पे है या आपका फोकस प्रोडक्ट सेलिंग पे है और सर सर्विस सेलिंग पे। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि मार्केट वैलिडेशन किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट सेलिंग पे करता है या फिर हमारे प्रोडक्ट कितने मार्केट में डाउनलोड सोच के, हमारे पास तो ऐप ही है एक्चुअली। अभी तक आपके पास ऐप है? ऐप ही है, हमारा ऐप ही आएगा सर। अच्छा, फ्यूचर में भी आपका एप्लीकेशन आएगा, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, सर सर्विस प्रोडक्ट आएगी। हम निकालेंगे तो वो ऐप बेस्ड ही होंगे, एक्सेसरीज जो इसको हम बोल रहे हैं, बट हमारा अभी कोई प्लान नहीं है कोई एक्चुअली। फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं होगा ना, कहने का मतलब है आपका? बिल्कुल होगा सर, हमारा फिजिकल प्रोडक्ट होगा, तो बट आपका एक्चुअली वो, अभी कोई प्लान नहीं है ऐप से पहले। अभी क्या होगा, एक एप्लीकेशन होगा जिसमें सर्विस होगी, बिल्कुल सर। है ना, ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल, तो जैसे वो बायजूस ने ऐप, किया था ना, कि पहले वो उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की, हाँ, बाद में अपने टेबलेट्स निकाल दी। गॉट इट। तो हम्म, इसी तरीके से अब आपके केस में क्या होगा, जैसे आपने कहा कि आपका प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप इससे सिमिलर जो कंपनी जैसा कर रही है उसका मार्केट हम्म, वैलिडेशन डालेंगे। ओके ओके। गॉट इट। ओके सर, ओके, मतलब थैंक कि यू। इतने ऑनलाइन यूजर्स हैं हम्म, जो कि ऑनलाइन ऑगमेंटेड रियलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक किसी है। वेबसाइट का डेटा निकाल लेंगे आप। ओके। वो आपके केस में मार्केट वैलिडेशन होगा। ओके सर। ठीक है, मतलब हम्म, अभी अपन प्रोडक्ट वैलिडेशन नहीं कर रहे, अपन मार्केट वैलिडेशन कर रहे हैं कि मार्केट में एक्सेप्टेंस कितनी होगी इसकी। ओके 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 सर, अगर अब आते हैं मार्केट साइज पे। ठीक है, अब मार्केट साइज की बात आती है तो इसको अपन को दिखाना होता है कि ट्रिप्स बुक वर्ल्ड वाइड कितना, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। अ, जैसे इन लोगों ने मार्केट साइज में सबसे पहले, जैसे आप कैसे दिखाओगे नवनीत आपके केस में, कि लेट्स सपोज 1 बिलियन प्लस स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं। जी ठीक सर। है, फिर इसका सब पार्ट करोगे कि एक एग्जांपल, 200 मिलियन स्टूडेंट्स ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू एजुकेशन मोड पे आना चाहते हैं। जी सर। ठीक है, एंड हम्म, उसके बाद थर्ड में आएगा कि ये सेकंड वाला हुआ था सर्विसेबल, मतलब ऑगमेंटेड वाला जो मार्केट है वो आपका सर्विसेबल मार्केट है। ठीक है। हो सकता है ना बहुत लोगों को ऑगमेंटेड हम्म, से करना ही नहीं हो, रियलिटी का पता, एआर का पता ही नहीं है सर। पता ही नहीं हो। हम्म, तो ये वो बंदे हैं जिनको एआर के बारे में पता है और एक एआर के बारे में बेसिक नॉलेज है। जी सर। अब आती है बात कितना आप अ, कर सकते हैं, मतलब मार्केट साइज आप, फर्स्ट तो अपन ने बात करी ओवरऑल। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ओवरऑल कितनी मार्केट बुक हो, कितना है। ओवरऑल हम्म, मार्केट कितना है, फिर अपन ने सर्विसेबल करा हम्म, कि भैया हम एक्टिव इतना है। एआर एआर से रिलेटेड इतना मार्केट है। फिर हाँ। अपन को बात करनी है अपने वाले में केस में कि हम कितना कर सकते हैं। यूजुअली जी जी। ये ऐसे कैलकुलेट हो जाता है, जैसे 560 मिलियन है तो उसका 2% या 1% भी आपने कर लिया तो ये आपका शेयर ऑफ मार्केट होगा। ओके सर। इस तरीके से आपको मार्केट साइज दिखाना है। गॉट इट? ओके ओके सर। हेलो। हेलो हाँ सर। हाँ, आते हैं। हाँ बोलिए। जैसे मेरे को जब मैं वो लीन कैनवास बनाया था तो एक डाउट आया था कि हमारे कंज्यूमर्स कौन होंगे। तो एज फार्मर, एज ए फूड प्रोडक्ट, तो मेरे को क्या एक्सप्लेन करना चाहिए कि एवरीवन, बिकॉज नहीं, वो मैं क्वेश्चन समझ गया, वो आपका क्वेश्चन लीन मॉडल कैनवास का एक्सप्लेनेशन के वक्त ही अपन उसको वापस ले लेंगे। ठीक है, और अभी, अभी हमने मार्केट वाला जो देखा। हाँ, मार्केट साइज में अभी के लिए आपको इतना ज़्यादा ये समझना है कि आपको कभी भी ये नहीं बोलना कि एवरी कस्टमर इज माई, सो एवरी पर्सन इज माई कस्टमर, यूजुअली ये करते हैं बच्चे। ठीक है, आपको एक, जैसे जैसे अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर है तो आपको पहले बताना है कि इसकी मार्केट साइज क्या है, मतलब अब एजुकेशन है तो कितने लोग एजुकेशन करते हैं,
फिर कितने लोग ऑनलाइन पे आते हैं, फिर कितने लोग हम अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसे ही अ, अगर एग्रीकल्चर का मार्केट इतना बड़ा है, लेट सपोज जो भी आप नंबर देते हो, फिर आता है जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उसका मार्केट कितना बड़ा है, फिर आता है आप कितने लोगों को कर सकते हो। ओके। ऐसे आप मार्केट साइज दिखाते हो। ये नहीं बोल देते कि एग्रीकल्चर में 200 मिलियन लोग हैं तो वो 200 मिलियन लोग मेरे कस्टमर है भाई। वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूजुअली स्टार्टअप्स करते हैं ऐसे, जब रॉ स्टेज पे होता है ना, जब ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं समझते, तब वो यूजुअली उनकी पिच डेक आती है ना, वो हमें ऐसे ही आती है, जिसमें वो लोग, और आप, नेचुरल सी बात है, अगर आपने भी ऐसी कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं करी हुई है, तो यूजुअली जब आप भी बनाओगे तो आप तो लिख दोगे यार कि भैया 200 लोग, दो, मान लो 2 मिलियन मैंने पढ़ा कि 2 मिलियन लोग ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं, तो 2 मिलियन लोग मेरे कस्टमर हो गए। होता है, कोई करते हैं यूजुअली, ये गलतियां कई बार करते हैं, मैंने भी करी है। बट जब हम स्टडी कर लेते हैं तब हम समझते हैं कि ये सारे ऑनलाइन वाले मेरे कस्टमर्स नहीं है। ऑनलाइन में जिसको ऑगमेंटेड चाहिए वो मेरा कस्टमर है। ऐसे ही आपका जो फील्ड है एग्रीकल्चर में, मेरे को भी पूरा क्लियर नहीं है कि आप किस पर्टिकुलर नीश में, क्योंकि आपने भी डिसाइड भी नहीं करा है, शायद आप भी अभी कंफ्यूज चल रहे हैं कि हम इसी नीश नीश पे काम कर रहे हैं तो हमारा मार्केट ये है। आफ्टर आई एक्सपीरियंस लीन मोड, लीन कैनवास के अंदर फिल करने के बाद काफी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो वो मैं लीन कर रहा, क्योंकि मुझे आपका आज ही मिला है, तो मैं आफ्टर दिस कॉल आई विल गो थ्रू इट, एंड जो भी नेक्स्ट कॉल होगा उससे पहले अपन पहले वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल गो ऑन द प्रेजेंटेशन। आई आल्सो सेंड द प्रेजेंटेशन अभी अभी हाँ, बनाऊंगा। you try to, if you have created a presentation, try to modulate according this presentation, according to this session जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। और नवनीत, आपसे भी मैं यही बोलूंगा कि जो अपनी पिच डेक बनाई है उसको हाँ, रिफ्रेश रिफ्रेम करके इस तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा चेंज कर दो, ओके बट ओके सर। इसको on those बेसिस बनाते हुए एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना लो। हम्म हम्म हम्म, जी सर। ठीक है, अब आते हैं अपन, मार्केट साइज क्लियर हो गया। सर वन मोर डाउट सर इन मार्केट साइज। हाँ हाँ, पूछो पूछो। If we are looking for the target audience in India or an हाँ investor in India, हाँ, तो सर अपन पॉपुलेशन या फिर अपना जो टारगेट मार्केट साइज होगा वो पूरे वर्ल्ड का देखें, सिर्फ इंडिया का देखें अपने पिच में। जैसे मतलब अगर आपका, नहीं वो तो अगर मैं आपको मैं मैं अगर डिपेंड कर। इन्वेस्टर को इंडिया में देख रहा हूँ, हम्म, मान लो आप इन्वेस्टर हो हाँ और मैं आपको अपनी पिच भेज रहा हूँ, हाँ, तो सर मैं क्या फोकस रखूँ कि मार्केट साइज वर्ल्ड वाइड हो या फिर सिर्फ इंडिया का हो? वर्ल्ड वाइड हो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड। कोई भी इन्वेस्टर ये चाहेगा कि एक, अब जैसे ओला के लिए जो पिचिंग करी भावेश अग्रवाल ने, तो उसने ये थोड़ी बोला कि मैं तो इंडिया में ही रेस्ट्रिक्ट, मतलब आपने खुद, आप हम्म, ये कह रहे हो कि आप खुद ही बता दोगे कि मैं तो इंडिया तक ही रहूंगा। आप तो ओके। बल्कि ब्रॉडर व्यू बताओगे ना उसको कि और इंडिया के बाद हम्म, यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, जाते हो नहीं जाते हो वो आपके एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। ओके बट सर। आपको ब्रॉडर पिक्चर तो दिखाओगे कि ये होगा। ओके सर। ठीक है, इसमें आप एक और चीज कर सकते हो जो कि मैं आपको, जैसे मैंने अभी होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है पिच डेक का, ऐसे ही स्लाइड बीन हुई है, नंबर ऑफ प्लेसेस पे आप डायरेक्ट, जैसे नवनीत आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, एक्स्ट्रा मार्क्स की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, ओके सर। बायजूस की मिल जाएगी, ओके। ऑगमेंटेड रियलिटी में भी कोई होगी जिसकी वेबसाइट अवेलेबल होगी, सॉरी पिच डेक अवेलेबल होगी, जी सर। है ना। और सौरभ, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा, आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड भी आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन देख सकते हो, तो वो एक आपको ईज हो जाएगा। ठीक है, it's not like कि we are copying, it's कि we are understanding and we are framing accordingly। इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हो गई मार्केट साइज वाली स्लाइड। अब आता है प्रोडक्ट, बड़ी सिंपल सी स्लाइड है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके स्नैपशॉट्स पे डलते हैं, है ना। अगर ऐप है तो ऐप में भी फर्स्ट पेज सेकंड पेज, जैसे आप वेब ऐप है तो जैसे अपने वेबसाइट पे फर्स्ट पेज होम पेज होता है, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे पेजेस होते हैं, राइट। तो इसमें आप 2-3 पेजेस से एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे इन लोगों ने करा हुआ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है। नो। ठीक है, सिक्स
सॉरी, सिक्स पे थी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अपन ने जैसे इन लोगों ने डाल रखे सिंपल सा स्नैपशॉट्स डाल रखे हैं, जो ऐप पे इनका इनका एप्लीकेशन खोलोगे तो ऐसा दिखता है, तो इन लोगों ने वो डाल रखे हैं। इनकी वेबसाइट खोलोगे तो ऐसी दिखेगी, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इनका ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जब एयरबीएनबी ने प्रेजेंटेशन डाला होगा। अब ये नहीं जरूरी नहीं कि आप वेबसाइट चेंज नहीं कर सकते, आप वेबसाइट चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी कर सकते, ठीक है। आ रहा है समझ? ये सब। ठीक है। अब इन लोगों ने देखो कितना इजीली समझा रखा है अपने प्रोडक्ट में, एक ही स्लाइड में डाल रखा है, सर्च करो, रिव्यू करो, बुक करो। गॉट इट? गॉट इट। ओके सर। अब आता है बिजनेस मॉडल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, किलर स्लाइड, पढ़ पा रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पढ़कर ही मतलब जो इन्वेस्टर है उसके लिए मतलब का ही है बिजनेस मॉडल क्या है। बोलो कुछ, हाँ ना? यस सर, यस सर। तो हाँ, अब इन लोगों ने कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी है, सीधी सीधी बोला है, वी टेक अ चार्ज, वी टेक अ 10% कमीशन ऑन ईच ट्रांजेक्शन। खत्म। कि भैया जो भी ट्रांजेक्शन होगी कस्टमर और उसके बीच में, अगर 1000 रुपए का रूम बुक हुआ है तो उसमें से 10% हमारा, ठीक है। ओके सर। समझ आ गया? इन्वेस्टर को भी समझ आ गया कि भैया ये, क्योंकि ये एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं। एयरबीएनबी अगर ऐसे देखोगे तो एक तरीके से मीडिएटर हुआ ना, लिस्ट कर दिया उन लोगों ने। अब ओयो भी क्या हुआ, मीडिएटर ही हुआ। होटल लिस्ट कर दिए, एक साइड पे हम्म, कस्टमर से, एक साइड पे होटल से, जी सर। और वो सर बट कमीशन पे सर, अर्न करते हैं। हाँ। सर बट इन्होंने तो रेवेन्यू स्ट्रीम सर एक बार बता दिया कि हम 10% कमीशन लेंगे। लेते बट हैं। सर कोई कंपनी है जो 2 या 3 तरीके से कमाई कर रही है। तो दोनों तीनों तरीके डाल सकते हो आप। अच्छा, ठीक। अपन ने शायद फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में मैंने आपको दिखाया भी था वो तरीका डालने का। लीन अरे मैंने मॉडल। आपको एलएमसी में ही बताई थी वो चीज की कैसे ये डाल ये सकते सर, हैं। ये जैसे सर, ये सर। ओला का था, तो ओला तीन हम्म, चार तरीके से रन करता है। बिल्कुल। अब रेवेन्यू इनका है, स्ट्रीम। तो इन लोगों ने सिर्फ एक ही वे से डाल रखा है, क्योंकि इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही है ना। ये कुछ नहीं कर रहे, और ये सीधा सीधा भैया एक वेबसाइट बना के बैठे हैं जिसपे अगर आपन ने ट्रांजेक्शन करा तो, जैसे यार सब बड़ा, ये इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा है। आप ओयो आपने बुक करा है ना, किसी न किसी ने, है ना। तो अगर 3000 का रूम बुक करा है तो उसका 10 या वो वेरी करेगा, 10 से 15% ओयो वाला ले लेगा। हम्म, हम्म, बाकी सारा हेडेक होटल वाले का है। कस्टमर आएगा, रहेगा, चादर बिछी नहीं बिछी है, क्या है प्रॉब्लम, वो ओयो वाले को फोन नहीं करेगा, वो तो अपने पहले इस पे जाएगा ना, होटल वाले को बोलेगा, ये ठीक है। यस। गॉट इट? अब ऐसी तरीके से आपको अपना सिंपल वे में बिजनेस मॉडल डालना है, जो भी आपका होगा। फिर आपको ये डालना है, ये नीचे उन लोगों ने दिखाया है कि कितना हम कमाएंगे, पहले ऊपर तो डाल दिया 10% हम कमीशन लेंगे, ठीक है। फिर इनने ये बात करी है कि इतने जो ने दिखाया था ना शेयर ऑफ मार्केट पहले वाली स्लाइड में, ये दिखाया था ना आपको, शेयर ऑफ मार्केट दिखाया था, 84 मिलियन ट्रिप्स, है ना। 84 मिलियन ट्रिप्स इन लोगों ने बोला कि हम अपने थ्रू करवाएंगे, है ना। यहाँ इन लोगों ने एग्जाम्पल लिया है 84 मिलियन डॉलर्स। एक यस सर। एग्जाम्पल लेके इन लोगों ने डाल दिया कि भैया 84 मिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होगा, और 25 $25, इनने एक एवरेज भी लिख दी है, $80 पर नाइट, ठीक है। एंड ओवरऑल प्रोजेक्टेड रेवेन्यू डाला है 2.15 बिलियन का, $2.15 बिलियन। बेसिकली
ये अगर अपन इसको जैसे अगर अपन नीचे जाएंगे तो इसमें अंडरस्टैंडिंग पूरा इन लोगों ने डिटेल दे रखा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो कि 85 $84 मिलियन का जो हम लोग मार्केट जिसको अपन जो कि अपना एक तरीके से टारगेट मार्केट है, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग एवरेज फीस जो दिखाई है उन लोगों ने, ये $25 दिखाई है। एंड देन दे हैव फाइनलाइज द रेवेन्यू कितना हुआ। इसी तरीके से आप सेगमेंट करोगे कि भैया इतना मार्केट मेरा, मतलब अगर मेरी 10% कमीशन होगी तो इतना डॉलर का, मतलब इतना मार्केट है जिसको मैं कैप्चर करूंगा, उससे इतना फीस चार्ज करूंगा जिसके थ्रू मेरा इतना मनी बनेगा। गॉट इट? समझ आ हाँ रहा है नवनीत? यस सर, सर अभी कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। यस सर। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं बिजनेस मॉडल में अपन लिख दे पूरा कि ये ऐसे होगा, मतलब हम ये रेवेन्यू से अर्न करेंगे। यूजुअली ये बच्चे करते हैं। So we ठीक should है, mention our revenues in sir dollar, million dollar, नो नो billion नो नो dollar. नो, अरे No. भाई ये फॉरेन के So उसका एग्जांपल है, तो ये आप तो रुपीस में ही करोगे ना। rupees and INR. हाँ, आइए ना। Hmm. तो रेफरेंस क्या? ये तो रेफरेंस है। आप तो इंडिया के करा रहे, तब तो कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहे अपन, आईएनआर सर में ही तभी तो। डालोगे आप। वही। और आप ऊपर मेंशन करोगे, ये बिल्कुल सही है कि आप कितना परसेंटेज कमीशन लोगे, वो आप अगर आपका ऐसे वेबसाइट है तो आप उससे आपसे डालोगे। ठीक है, ये है एडॉप्शन स्ट्रेटजी। ये जरूरी नहीं है डालना, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। ठीक है, इसमें यूजुअली आप जैसे अपन की वो था ना, पार्टनरशिप्स, इवेंट्स कौन कौन से करोगे, ये सारी चीज़ें डलती है। ये देखो, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए डालना, ये डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की, कौन कौन सी आपकी, ये वाली कि कौन कौन सी और ऐसी वेबसाइट हैं जो कि ये काम कर रही है। जैसे एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट एक वेबसाइट है, hostels.com है, रेंटल होम है। इस तरीके से आपको डालना है। ओके। अब कंपटीशन में भी देखो, इन लोगों ने ये भी डिफाइन कर रखा है, अफोर्डेबल वाले, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, एक्सपेंसिव वाले। जो दोनों हैं, एक्सपेंसिव और ऑफलाइन है, वो इधर आ गए, रेंट मूवी और विप्रो। तो ये जो है विप्रो, ठीक है। अब जो अफोर्डेबल और ऑफलाइन है वो इधर आ गए। जो अफोर्डेबल और ऑनलाइन है, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, वो इधर आ गया। जो एक्सपेंसिव और ऑनलाइन है वो इधर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपना कंपटीशन जो है इस तरीके से ग्राफ में डालना है। ये आपको और ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगा जब आप अपने पर्टिकुलर स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, स्टार्टअप की प्रेजेंटेशन के बारे में, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। और मैं आपको ये वाली जो लिंक है ये भी भेज दूंगा ताकि आप डिटेल भी पढ़ सको इस बारे में। ठीक है, मैं अभी आपको ये एक बार डाल दी देता हूँ, नहीं तो चैट पे डाल देता हूँ। मैंने ये एक बार चैट पे डाल दिया है। आप में से जो भी इसको रेफर करना चाहे बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब आपके पास क्या क्या एडवांटेज हैं दूसरे से ऊपर, मतलब आप ऊपर कैसे आओगे। ठीक है, तो इन लोगों ने डाल रखा है फर्स्ट टू द मार्केट, पोस्ट इंसेंटिव, पोस्ट को हम पैसा दे रहे हैं, डिजाइन एंड ब्रांड, लिस्ट वंस, प्रोफाइल्स, ईज ऑफ यूज। मतलब कुल मिला के जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे आप अलग कैसे हो, उसको यूएसपी भी बोल सकते हो आप एक तरीके से। यूएस के कंपनी एडवांटेज में क्या कोई डिफरेंस है या सेम ही? डिफरेंस नहीं है, ये एक तरीके से आप यूएसपी में भी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डाल सकते हो। ओके। जैसे फर्स्ट टू द मार्केट या फिर यूएसपी हो सकता है। ईज ऑफ यूज, मतलब आप बहुत सिंपल तरीके से बुक करते हैं, ये आपका यूएसपी हो सकता है। पोस्ट इंसेंटिव, मतलब दे कैन मेक मनी जो भी होस्ट है। डिजाइन एंड ब्रांड, ये भी आपका वो हो सकता है। गॉट इट? ओके। 11th आती है टीम, इसमें कुछ कंफ्यूजन है नहीं, बड़ा सिंपल सा है। जो फुल टाइम आपके होंगे सिर्फ आप वही डालोगे। गॉट ओके। इट?
ट्वेल्थ आता है प्रेस। ओके। अगर आपके बारे में छपा है या नहीं छपा है तो आप डालोगे, नहीं तो नहीं डालोगे। जैसे इनके बारे में इंडियन वेबसाइट्स पे आया हुआ है। एंड लास्ट इज यूजर्स टेस्टिमोनियल। ये हो तो बहुत बेस्ट है, मतलब किसी का पिक्चर और किसी ने आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया है तो। फीडबैक। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल्स। ये मैं इसलिए क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं इसमें। एंड लास्ट है फाइनेंशियल्स। वी आर लुकिंग फॉर 12 month फाइनेंसिंग टू रीच आउट 80, मतलब कितना कितना ज़्यादा आपको फाइनेंशियल, कितना ज़्यादा पैसा चाह रहे हो, एक तरीके से सीख कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ओके। ये आपके लिए लेटर स्टेज पे आएगा, इसलिए अभी आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ये तब आएगा जब आप बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे, और ये बहुत डिटेल होता है। अभी आप फर्स्ट टू 13 जो स्लाइड थी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल ऑन द प्रेजेंटेशन साइड। मतलब अब आप आओ डिस्कशन पे एंड वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। और सर सर कम सर मार्केट कंपटीशन के बारे में सर एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। मार्केट सर हम कंपटीशन, हाँ सर, मेरा एक ही इशू आ रहा है सर मार्केट कंपटीशन के बारे में ही बार बार। मतलब क्या मैंने उसका पहले इशू क्या है? सर इशू यही है कि जैसे हम कैसे शो करवाएं कि हमारा मार्केट कंपटीटर यही है। एक मार्केट कंपटीशन की बात कर रहे हो ना, तो यार हाँ जी जैसे सर। बड़ा सिंपल है ना। इसमें कंफ्यूजन क्या है, जैसे मान लो मैं कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो ना। अब जैसे ओयो का हम्म, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर ओयो अपनी कंपटीशन वाली स्लाइड डाल रहा है तो वो ये हम्म बनाएगा कि गो आईबीबो भी मेरा एक कॉम्पिटिटर है क्योंकि वो भी ऑनलाइन हम्म बुक करता हम्म है ना। हम्म, मेक माई ट्रिप भी मेरा कॉम्पिटिटर है। जी। और लोकल चेन्स भी आजकल होती हैं, ये जैसे हम्म, कोटा में भी एक दो चेन स्टार्ट हुई हैं, होटल्स booking.com और ऐसे करके। booking.com भी उसका कंपटीशन है। ठीक है। अब उसको ये डिफाइन करना है इन दैट चार्ट जो कि मैंने अभी आपको भेजा है ना, उसमें आपको थोड़ा सा रीड करना है। और हम्म वो वो बेसिकली क्वार्टर में उन लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं। हम्म उसमें आपको डालना है कि कौन कौन से वैसे तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो कि जरूरी नहीं आप क्वार्टर चार्ट में एक्सप्लेन करो, लेकिन लोगों से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मेरे कॉम्पिटिटर्स। ठीक दैट्स है। इट, दैट्स इट। सर देख सर, जैसे एयरबीएनबी ने अपने कंपटीशन मार्केट डाला था ना, हम्म। इन्होंने क्या किया था कि अपनी कंट्री के बेस के हिसाब से डाला था। जो वेबसाइट्स यहाँ शो हुई थी ना, हाँ, ये सारी लगभग यूएस की यूएस की है, सही वेबसाइट्स बात थी। है। आप भी तो ऐसे ठीक ही है, करोगे, तो आप सर इंडिया की डालोगे। सर इंडिया की मैं डालने बैठता हूँ ना सर, तो 3-4 कंपनी में सिमट जाता हूँ मैं। हाँ तो और तीन वो चार भी ही डालोगे एजुकेशन ना। बेस्ड नहीं है। यार ऐसा नहीं है कि आपके डोमेन पे वेबसाइट्स ही नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं नहीं सकता। सर, वेबसाइट्स हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा वेबसाइट्स नहीं है। हम्म। बट जो प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है उनका सर क्या करें। मैं आपको बताता हूँ सर, मेरी डिटेल्स मेरे पास क्या है। हम्म। तो पिछले 1-1.5 महीने मैंने लगाया सर। एक तो मेरे पास कंपनी आती है ये चलो चार्जर। एक काम, नवनीत, इस चीज को ना तुम ऑफलाइन लो, आफ्टर द हम्म, कॉल लो, क्योंकि ताकि जो अदर स्टूडेंट्स है वो नहीं ओके हो। सर, ओके आप ओके मुझे सेपरेट कॉल करके ये जो ओके ओके। स्पेशली ये जो चीज़ है ये मुझे आप हम्म, सेपरेट कॉल पे बताना। हम्म, कल अपन कर लेंगे एक ओके दो सर। बजे का अराउंड। आप मुझे पिन कर देना एंड देन वी विल हम्म, डू अ कॉल, नॉर्मल कॉल। ओके इसके ओके सर। अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। आई हैव टू आस्क समथिंग। जब हम पिच करते हैं इन्वेस्टर, एक चीज बोलते हैं कि एग्जिट प्लान। तो एग्जिट, हाँ। व्हाट इज दैट एग्जिट प्लान? एग्जिट बेसिकली इन्वेस्टर ये देखता है कि आफ्टर आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपसे कुछ इक्विटी लेगा, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन, मतलब एक तरीके से वो परसेंटेज अर्निंग होता गया, है ना। आप उसको, आपने एक तरीके से हिस्सेदारी दे दी अपनी कंपनी में। देन आफ्टर अर्निंग सम अमाउंट, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, ठीक है। आप अगर आपकी कंपनी है, आप इन्वेस्टर को बोलोगे ये लो पैसा आपका, है ना, ये इतना पैसा हो गया है एंड यू कैन टेक एग्जिट। मतलब और इन्वेस्टर भी बोलता है कि भैया मैंने 1 रुपया लगाया था, मैंने 100 रुपये कमा लिए, अब मैं निकल जाता हूँ इस कंपनी, अब मैं कहीं और फोकस करूँगा। दैट ओके, इज तो एग्जिट।
ऐसा नहीं होता कि कोई इन्वेस्टमेंट करता है और वो हमेशा ही कंपनी के शेयर होल्डिंग में रहता है? हमेशा जिंदगी भर नहीं रहता, यूजुअली नहीं रहता। ओके, तो कुछ एग्जिट प्लान होता है, उस बेसिस पे ये बहुत इन्वेस्टर लेटर ऑन वाली चीज है सौरभ, मतलब ये डिस्कशन इसलिए अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी वाली स्टेज पे फ्रूटफुल नहीं है ये डिस्कशन। ये बहुत लेटर ऑन स्टेज की बात है इन्वेस्टमेंट से। अभी अपन का फोकस ये है कि इस अपनी जो पिच डेक है वो इस तरीके से फ्रेम हो जाए। ओके गॉट इट? ओके। और मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन भेजी है। आप मुझे एक बार मेल कर देना आज, मैं एक बार हाँ, ऑफिस से रिव्यू। मेल कर दिया। आपने एलएमसी भेजा है, प्रेजेंटेशन भेजा है क्या आपने? हाँ, उसके बाद वो अभी भेजिए मुझे। हाँ तो वो एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सको तो और अच्छी बात है। व्हाट्सएप पे नंबर नहीं है। नंबर मैं आयुष को बोल दूंगा आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक आयुष आप इनको नंबर दे दीजिएगा मेरा। Okay. है। So I guess that's all for now. I have another call at 4:30. So सर, let's wrap it up right now. नेक्स्ट कब मिलेंगे हम? Next, आयुष you 26th. remember 26 को जो है फाइनल है वो, हाँ. and उससे पहले it will be it will be good if you can अपने lenses को share करें, if you can share the draft of your improved PPT as well. जो कि Okay, sir. इस पीपीटी के बेसिस जो अपन ने आज सेशन करा उसके बेसिस पे अगर आप कुछ भी बना पाए, मैं ये नहीं बोला पूरा बना दो, लेकिन कुछ भी बना पाओ तो बहुत अच्छा है, ताकि ओके आफ्टर फिफ्थ सेशन वी कैन से कि हमारा ए पॉइंट से हम मूव ऑन हुए थे जहां मैंने आइडिया बताया था, इन लास्ट पॉइंट जो अपन ने 5 सेशन करे, तो भले 2 स्टार्टअप्स ही हैं लेकिन 2 स्टार्टअप्स का ये क्लैरिटी हो गई कि भैया वो ये करने वाला है। Mhm. Yes. ठीक है, जी। Okay, sir. ये अपना एम है। Okay. और Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।